Hello everybody, I'm Dr. Mukesh Parik and I'm live. Show your presence so that we can start the class. In today's class, we'll be continuing with where we left last time. As you remember that we were discussing Middle English works of most important works of Middle English, and before that we touched the simple part of history of English literature, like how English. And in our last class, at the end of the lecture, I also discussed questions from that paper. Uh, I'll be giving you surprises most of the times, and in today's class, let us talk about another important work. Its name is, you can go to my website mukeshparik.com and directly go to my uh, blog there. I have uploaded under the title 17th July FB class. Those who are new or first time watching me and want to take benefit of this class and the study material what I am teaching right now, though I already have sent this PDF to the regular students of our classes, but for the newcomers for whom I am taking these kind of free classes on live FB, they can go to my website mukeshparik.com and I have my blog there, and under the title 17th of July FB class, I have uploaded certain things and I'll be teaching from that so that you can read in between. Okay, so write down today's first important poem in Middle English, and that is Poema Morale. Poema, Poema, Morale. Poema Morale is exactly, suppose we translate it into from Latin into English, then we call it a moral ode. It is talking about, this poem talks about actually the kind of ethical behavior of the people of church, and why this poem is important, why they can ask you a question, why this book, this particular poem has got references in almost all the books of history. Poema Morale, I'm talking about Poema Morale, and those who are joining us now, they should go .com and can go to my blog there. I've uploaded today's material there on under the title 17th of July FB class. So I'm talking about Poema Morale, Poema, Poema, Morale. Morale is a word, as you know. In today's English, morale means confidence. But if you literally translate this poem into English, then its title is a moral ode. Ode, as you all know, that is an addressing poem. And why this poem? I was talking about that. Why this poem is important? Because this poem gives, a direction to the English meter. This poem is written into 200 couplets, and this particular poem falls in the category of homiletic tradition. Homiletic. Homiletic mean to say a kind of a word is there in English, homilies, and in this they either direct the people of liturgy or say the people of church, like how to behave in church and in public. Okay, and this poem talks in general about how to behave in public, how to do good deeds so that we can go to heaven. And as I was talking about that, why this poem has got reference in almost all the books of history of English literature, because it is written in a particular meter. Its name is iambic septenarius. Iambic septenarius. It means iambic, you all know, I already have discussed in different classes, a combination of unstressed and stressed meter. And septenarius is a Latin word. It means 7 feet. So now let me talk about that, why this particular poem is important. That 7 manuscripts are found around. So when 7 manuscripts are found around different libraries, then we can understand that in that particular age when this poem was written, it must have influenced people. Okay, and
this another question which can they can ask us, that this is found in Jesus manuscript. As you all know that most of the poems when we talk about in the Middle English or say in Old English, their manuscripts are found in different books or different titled manuscripts. So this particular poem is found in Jesus manuscripts. Okay, so I have actually why this poem is important, that it gives us a kind of say, as I told you, the kind of rules, how to behave in public, and how women should behave, how men should behave. And I think the popularity of this kind of books made Chaucer wrote, because as you all know that this poem was written around 1200. Okay, and Chaucer wrote after around say 150 years. He was born after 150 years, and so we can understand that when we read Canterbury Tales and when we read about Chaucer's moral righteousness, that how he looked at the people of church, the people of common men, and why he's making fun of certain people, and who gave that gaze. So we should be aware about that. When a professor asks us a question in exam, they have a particular, though the things are strewn around in different history of English literature books, but being a teacher, I can tell you, like, which poem is important, how they can cull or they can extract a question. So in today's class, the first poem which I have stressed upon is Poema Moral, and I have told you the detailed description of this poem. About 7 or 8 points are important from which they can ask you a question. Now let me talk about that if we have some patriarchal attitude today, and in our scriptures also, if we read Mahabharata, if we read Ramayana, if we go beyond that also, we come to know that there are certain things which were uh, kind of codes of conduct. So you can consider that this Poema Moral had a great influence on the Middle English people even after the Norman conquest. Because Norman conquest, why I am talking about here, those students who are regular students of English literature and those who are very seriously preparing, they know that with the rise of Puritanism in English culture, when we read Restoration drama or Restoration theatre, we see that altogether morality is diminished, and people became more lax in moralities. It means that Charles II, he came from France, because when his father Charles I was beheaded, he was rescued by certain people and sent to France. And France is considered to, right from the beginning, it is considered that they are a bit morally lax people. They have certain different codes of conduct, different attitude towards sexual orientations. Molière has written, Misanthrope. So we can understand that when we read history of English literature, we come to know that this particular poem had a great influence on Chaucer, and it influenced just as Manusmriti influenced all of us somewhere. If you read any book, if you sit near any old person in your family, you will come to know that there are certain rules and regulations which are you don't find written anywhere, but still they are in the memory of the people. Why? Because somewhere, जैसे आप लोग जानते हो कि जब भागवत कथा होती है, मोस्टली वी आर ऑल नॉर्दर्न इंडियन पीपल, हम हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं भागवत की कथा होती है 7 दिन के लिए. तो जब भागवत की कथा होती है तो उसमें आपको पता है कि व्हेन दे रीड श्रीमद् भागवत, तो उसके अलावा दे पंडित जी और द पर्सन हु इज गिविंग लेक्चर or say kind of sermon, he keeps telling what are to be done, and what are to be not to be done by women particularly. So this Poema Moral itself, you can understand that actually it is moral. Okay, moral is a different word in English language today. So I don't want to speak more on this poem. सबको पता होना चाहिए Poema Moral जो है वो किस टाइप की पोएम है. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है मॉरल ओड. ये 1200 से पहले लिखी गई थी. इसने इंग्लिश मीटर को बहुत इन्फ्लुएंस किया है. ये इट टॉक्स अबाउट गुड डीड्स,
इट इज रिटन इन आयम्बिक सेप्टेनेरियस, एक अलग तरह का मीटर है लैटिन का, और ये जीसस मैन्युस्क्रिप्ट में पाई जाती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ भी आपको याद रह गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब मैं आता हूं. Those who are now joining us, I ask them to kindly go to my website mukeshparik.com and find my blog there. अपलोड कर रखा है आज का लेक्चर, उसमें जो भी पॉइंट धीरे धीरे. अब मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगा आज. चलिए बताइए कितने स्टूडेंट्स है क्लास में जिनको हैरोइंग ऑफ द हेल का मतलब पता है? डोंट गूगल एंड टेल मी. Harrowing, HARROWING, harrowing of the hell. How many of you are aware about the term harrowing of the hell? Answer me so that I can move further. How many of you are aware about the term harrowing of the hell? और कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको मालूम है कि apocryphal क्या होता है या what is apocrypha? आंसर नहीं आ रहा है. Can you see me? Hello, why are you not answering? At least you can write no if you don't know. Harrowing of the hell and apocrypha. Okay then, let me tell you if you don't know. Harrowing of the hell. Harrowing means descent. Descent means नीचे उतरना. Harrowing of hell एक टर्म है ये आपको एग्जाम में पूछी जाएगी क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कई जगह ये टर्म बिखरी हुई है. एक्चुअल में क्या है कि आपको सबको एक दो तीन बातें मालूम होनी चाहिए कि बाइबल का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे होता है. बाइबल सबसे पहले आपको मालूम है हिब्रू लैंग्वेज में थी. हिब्रू लैंग्वेज से फिर वो ग्रीक लैंग्वेज में आई. ग्रीक लैंग्वेज से फिर वो लैटिन लैंग्वेज में आई. लैटिन लैंग्वेज से फिर वो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई. फिर उर्दू में, फारसी में, है ना. नॉट एग्जैक्टली ग्लोरिफिकेशन ऑफ हेल. डिसेंट. डिसेंट का मतलब नीचे जाना. एक्चुअल में हेरोइंग ऑफ हेल सॉरी, बिकॉज हेल और हेवन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, तो कहीं गलती से अगर मैं यूज कर लूं तो मुझे आप टोक सकते हो. हेरोइंग ऑफ हेल का जो रेफरेंस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, बट क्योंकि इट इज स्ट्रून अराउंड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आप लोग इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हो. नो नवीन, इट्स नॉट जीसस वॉज सेंट टू हेल. जीसस को जब क्रूसीफाई किया गया था तो आपको पता है उनकी डेथ हो गई थी. अब क्या है कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि कैसे लोगों को यकीन दिलाया जाए, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया है, ऑटोमेटिकली कोई धर्म नहीं फैलता है. इसको कोई ना कोई जिसको अपन मिशनरीज बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि मिशनरीज केवल क्रिश्चियनिटी में होते हैं. देयर आर मिशनरीज, जैसे अभी आपको मालूम होगा कि तबलीगी जमात के बारे में हम सब लोगों ने अभी बहुत सुना. तो तबलीगी जमात के अंदर बहुत सारे देशों से लोग यहाँ आए हुए थे. कौन है तबलीगी जमात के लोग? दे आर मिशनरीज. मतलब वो कुरान शरीफ के अंदर जो कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. सो दैट वे दे स्प्रेड इस्लाम. और कभी आप तबलीगी जमात के लोगों से मिलना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जिस तरह से उनको नेगेटिव शेड में दिखाया गया वो उतने नेगेटिव नहीं होते हैं. मैं मिला हुआ हूं इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ा दिया गया, क्रूसीफाई हो गया, व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड, तो 40 डेज बाद वो वापस से, जब हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि इन बिटवीन ही वेंट टू हेल, और वहां से वो वापस आए. तो ऐसा है, अलग अलग बाइबल में ये चीजें. अब होता क्या है कि जो हेरोइंग ऑफ द हेल का जो रेफरेंस है वो सेप्टुअजिंट में आता है. एक और टर्म लिखिए आप लोग, सेप्टुअजिंट. ये क्वेश्चन आपको नेट में आ सकता है क्योंकि बाइबल से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल को, मेरे यूट्यूब पे. आप उसको देखें, वो इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबॉडी. तो बात चल रही है आज हेरोइंग ऑफ हेल के बारे में. हेरोइंग ऑफ हेल जो है वो एक एपोक्रिफल बॉडी ऑफ कैनोनिकल लिटरेचर है. अभी मैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं. कैनोनिकल लिखिए. कैनन एक वर्ड है इंग्लिश में. I will be able to use bilingual. I'm sorry because most of my students require Hindi also. जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो they feel connected actually. But whatever Hindi I will be speaking, I will translate into English also so that my students from different parts of the country and world can understand me. So I'm talking about canonical work. Canon एक word है. Write down the word canon. हालांकि there are two spellings of the word canon. Another one is CANNON.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कैनन. दैट कैनन का मतलब होता है बिग गन, तोप जिसको बोलते हैं. Another word is canon with single n. Canon with small c and canon with capital C, are different entries into dictionary, in a dictionary, so you can understand it. Canon का मतलब होता है body of written material which is accepted. So anything which is accepted by Catholic Church is called canonical literature. Okay, आजकल canon word को, today we use the word canon in one another way also. That is anything which is accepted into the course, something which can be taught, as a syllabus. That is also called canonical. तो आप लोग जब प्रोफेसर बनोगे तो then you will find that people are using this word. But today because we are using, we are under the description of, or we are studying the description of हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो कैनोनिकल वर्क के अंदर व्हेन ट्रांसलेशन वाज हैपनिंग, एंड इन वन ऑफ माय अर्लियर क्लासेस आई टॉक्ड अबाउट ट्रांसलेशन होता है तो सम पार्ट ऑफ लॉस्ट, तो ऐसा वेंट टू हेल. आप अंदाजा लगाइए कि क्राइस्ट, जिसको कैथोलिक चर्च एक मिराकुलस फिगर मानता है, सन ऑफ क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड मानता है, मतलब ही इज साक्षात भगवान, so how can he go to hell? Because hell is something which is related to sin, and Christ did not commit a sin. इसका मतलब है later on when certain parts of Bible were considered, जब उसका ट्रांसलेशन हुआ, जैसे मैं सेप्टुअजिंट वर्ड यूज कर रहा हूँ. सेप्टुअजिंट जो बाइबल है वो ग्रीक बाइबल है, और सेप्टुअजिंट बाइबल में when certain things were unaccepted by the Catholic Church, when they considered that Christ cannot go to hell, so then they started calling particular parts of Bible which were translated from Hebrew to Greek and Greek to the other languages. They said that these parts cannot be the parts of Bible, they must have been added by certain satanic person. तो उसको उन्होंने apocryphal कह दिया. Apocrypha एक पार्ट हो गया. तो Harrowing of Hell is a part of Apocrypha. Apocrypha is opposite of canon. Canon मतलब accept, Apocrypha का मतलब something जो नेगेटिव है, समथिंग विच इज नॉट गुड. ओके, और समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से व्हाट इज एपोक्रिफा? एपोक्रिफल, समवेयर एनीबडी यूजेस अ वर्ड एपोक्रिफल इन फ्रंट of enriched in vocabulary, and you can also use the word apocryphal, apocrypha, blasphemous, something which is against religion, against the norms of religion of some community. तो ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं. तो दिस इज सेकेंड पार्ट. एक इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने अपने ब्लॉग पे नहीं डाला है. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, वो जाएं और मेरी वेबसाइट mukeshparikh.com पे जा करके और मेरे ब्लॉग को सर्च कीजिए. उस पर मैंने आज का मटेरियल अपलोड कर रखा है जो मैं पढ़ रहा हूं, सो दैट यू कैन रीड इट देयर. ओके, अब नेक्स्ट पोएम के बारे में लिखिए. दैट इज हैंडलिंग सिन, HANDLYING. इट्स ओल्ड, आर्केइक स्पेलिंग है इसकी. आर्केइक वर्ड जिसको नहीं आता है, दोज हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ आर्केइक शुड राइट ARCHAIC. आर्केइक मीन्स ओल्ड. सो हैंडलिंग सिन, सिन की स्पेलिंग है SYNN. दिस पोएम वाज रिटन इन 1303. सिन, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ऑलरेडी हैड अपीयर्ड इन योर एग्जाम इन ऑप्शंस. रॉबर्ट ऑफ ब्रून ने लिखी है, BRUNNE. Okay, now why this poem is important? Finds entry in different history of English literature, books of history of English literature, because it gives us the social customs, or how to live a cultural life. It's a glimpse of the Middle Ages, or say before Middle Ages, the cultural and social and religious life of England. Okay, so this was the third entry, or say fourth entry in today's lecture. अब आ जाइए नेक्स्ट पे. एक और बुक का नाम लिखिए, एक पोएम का नाम लिखिए. इट्स वेरी एक्चुअली अ बुक ऑल्सो. व्हेन आई से बुक और पोएम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द थिंग्स वर रिटन इन प्रोज ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स वर रिटन इन द मिडिल इंग्लिश इन पोएम, सो दैट दे कैन बी रिमेंबर्ड, दे कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ मेमोरी. मेमोरी को एक रूट, एक एटमोलॉजी है जिसको बोलते हैं नेमनिक. MNE, नेमनिक की स्पेलिंग होती है MNE, नेमनिक, NOIC. नेमनोइक या नेमनिक.
नेमोनिक वर्ड आजकल कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, यू कैन गो एंड सर्च इट। नेमोनिक टूल क्या होता है, जब हम व्हेन वी राइट समथिंग इन वर्ड्स, पोएम के रूप में लिखते हैं, मीटर से उसको एसोसिएट कर देते हैं, तो वो चीज जो है वो याद रखी जा सकती है। जैसे हमारे जितने भी शास्त्र हैं या ग्रीक कल्चर में आप चले जाइए, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रिटन इन वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स कैन बी क्रैम्ड अप, यू नो, एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन जिस पोएम की मैं बात कर रहा हूं, अब जो फोर्थ है, दैट इज दी एंक्रीन रिवले, नाम लिख लीजिए, दी एंक्रीन, ANCREN। एंक्रीन का मतलब होता है नन पुराने इंग्लिश में, एंक्रीन, ANCREN, रिवले, RIWLE, रिवले, और इसका एक्चुअल मीनिंग है द नन्स रूल और द रूल्स फॉर नन। यहाँ पे अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट मनुस्मृति। अब मैं आपको एक किताब से बहुत कुछ पढ़ के सुनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे मेरे पास, अगर होते तो वो अलग ही माहौल बनता। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पोएम, मैं दोबारा नाम बोल रहा हूं, द एंक्रीन रिवले, ANCREN, एंक्रीन रिवले, RIWLE, और द नन्स रूल। इट इज अ प्रोज वर्क, और इसके ऑथर का नाम लिखिए बिशप पुअर, बिशप पुअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पे ऑप्शन में क्वेश्चन आ रखा है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट priorist, because those who are studying for MA previous or MA final, or those preparing for, you know, entrance exams, or those who are preparing for SET or NET or JRF, they all know that Chaucer is a must, because he is considered to be the father of English literature. अब जब हम चौसर पढ़ते हैं तो we can ask ourselves a question that if he criticizes Prioress, if he writes in an ironical tone or in a paradoxical manner, by you know, particularly to the women folk, or say the women characters of that work, Canterbury Tales, then how he writes that, or who gave him that gaze? गेज के बारे में भी क्लास में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन आप मान के चलिए जो आपको मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं आपको। उसमें अब की बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से ये बुक, ये वाली पर्टिकुलर जो बुक मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिवले और द नन्स रूल, बिशप पुअर की लिखी हुई, ये बहुत फेमस है। ये आती है होमिलीज के अंदर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, होमिलीज की जब बात करते हैं तो लैम्बेथ होमिलीज बहुत फेमस है, लिख लीजिए लैम्बेथ। लैम्बेथ होमिलीज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैम्बेथ एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, और वहां पे लाइब्रेरी में जो होमिलीज एक काइंड ऑफ वर्क है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑल द रिलीजियस वर्क्स है कि साधु को कैसे रहना चाहिए, एक नन को कैसे रहना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितने लोगों के साथ बाहर जाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए, you know, what kind of color they should wear, whom should they accompany when they go out, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एंक्रेन रिवले नाम की जो बुक है, इसके अंदर एग्जैक्टली जो लिखा है, मैं थोड़ा रीड करना पसंद करूंगा। आप लोगों को पसंद है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं रीड नहीं करूँ। अगर आप चाहते हो कि सुनना उसमें से, आई हैव अ वेरी एंशिएंट बुक विद मी, एंड एंकर से बना एंक्रेस, मतलब कि नन। आप यस बोलेंगे तो मैं रीड करना स्टार्ट कर दूंगा। एंकर्स रिवले, रिवले का मतलब रूल्स, द रूल्स फॉर नन। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या रूल्स नन्स के लिए बनाए गए होंगे। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, जब हम एलिजाबेथन एज के ड्रामास को स्टडी करते हैं तो कई बार यू नो, एंड वेरी ऑनेस्टली लेट मी टेल यू कि आजकल जो प्रोफेसर्स क्वेश्चंस बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। कि जैसे वो एलिजाबेथन एज के विमेन राइटर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, जैसे वो विक्टोरियन एज के अंदर तो विमेन राइटर्स लिख ही रही थी, लेकिन और भी एजेस में विमेन राइटर्स लिख रही थी। तो विमेन का ये जो दर्जा है, दैट स्टेटस ऑफ विमेन विच वाज लोअर्ड इन द सोसाइटी, वो एक्चुअली नो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं जो रीड कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और मैं इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वहां पे जाके दोबारा इसको देखिएगा सब लोग, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। द लाइफ ऑफ द एंक्रेस वॉज टू बी वन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से रहना है, बी मेंडिकेंट, दे शुड नॉट स्टोर वेल्थ। ये शैल ईट नो फ्लैश नॉर लार्ड एक्सेप्ट इन ग्रेट सिकनेस, जब आपकी तभी आप मांस खाएं, वरना आप मांस ना खाएं। दे शुड नॉट टेक मील्स
आउटसाइड द कॉन्वेंट विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ बाहर। कॉन्वेंट का मतलब होता है जहां पे नन्स रहती हैं। आजकल इंडिया में तो कॉन्वेंट का मीनिंग ही बदल गया है। तो व्हाट बिशप पुअर राइट्स, बिशप पुअर का स्पेलिंग लिख लीजिए, POORE। बिशप पुअर का ये मतलब नहीं है कि वो गरीब पुअर है, इट्स सिंपली हिज नेम एक्चुअली। बाहर खाना नहीं खाना है लड़कियों को, खास तौर पे अच्छा देखो, जब नन्स के लिए ये रूल्स रखे जाएंगे तो ऑब्वियसली नन्स शहरों में जाकर के जो टीच करेंगी, सरमन देंगी, या जो चर्च में औरतें बहुत कम आती थी उस वक्त भी, तो ऑब्वियसली देयर वाज काइंड ऑफ स्ट्रेट जैकेटिंग in a manner, it this kind of education, this kind of work which was popular even in the Middle Ages, ultimately proved itself a kind of another guidebook, handbook, for women। और वो अपने आप को उस तरह से ही डील करती थी, अपने आप को उस तरह से रखती थी। फिर कह रहा है कि एन एंकरेस इज नॉट टू गैदर आर्म्स इन ऑर्डर टू डिस्पेंस देम। आपको आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब होता है जो भिक्षा आपको मिलेगी, आपको उनको खर्च नहीं करना है। ओके, फिर लिखा है एंड रेस्ट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड्स दिन। दिन का मतलब होता है शोर शराबा, आपको दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना है, सेक्लूडेड लाइफ जीनी है, आइसोलेशन में जीना है। वाइफरी इज मार्था's पार्ट एंड Mary's and rest from all the world's din, that nothing may hinder her from hearing the voice of God। क्यों रहना है दूसरों से दूर, शोर शराबे से दूर? so that you can hear the voice of, पता होनी चाहिए। जैसे देवदासी के बारे में हम बात करते हैं, that देवदासीज in the South India, they were actually ritually married to the deity in the temple। ऐसे ही जो हमारे यूनक्स होते हैं, हिजड़े होते हैं, ritualistically they are taken into the clan and they are also married to a particular deity। तो अगर आप लोग द डांस ऑफ यूनक कमला दास की पढ़ते हैं तो देन वी कम टू नो अबाउट दैट दे आर एक्चुअली मैरिड, इसीलिए वो इतना श्रृंगार करते हैं। पता होना चाहिए आपको ये सारी बातें। और पेट्रियार्की में अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बोल सकता, बिकॉज इट्स ऑल समवेयर पेट्रियार्की, क्लचिंग ऑल द इवन द थर्ड जेंडर, इवन द पीपल अच्छा, नन बहुत होती थी। ये नन का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं क्योंकि मैंने पढ़ा है, आप पढ़ोगे आपको भी पता चल जाएगा। इसका मतलब है द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉरी वाज देयर, एंड इफ अ पेरेंट और पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल टू अरेंज फॉर द डॉरी, द गर्ल्स वर। अच्छा, आपको याद है गो टू ननरी? बताइए डायलॉग कौन बोलता है? बहुत फेमस डायलॉग है, गो टू ननरी, NUNNERY। बताइए किस कौन से फेमस ड्रामा में ये लाइन आती है, गो टू ननरी? बताओ फटाफट से, गो टू ननरी। ननरी के दो मीनिंग है, एक है ये वर्ड, और से यू कैन से दैट देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ननरी। नन वर यूज्ड सेक्सुअली ऑल्सो, एंड कॉन्वेंट जहां पे नन्स रहती हैं उसको जब ननरी बोलते हैं तो इट इज एक्चुअली ब्रॉदल ऑल्सो। तो ये हैमलेट का फेमस डायलॉग है जो ओफिलिया को वो बोलता है जब वो, तो इसका मतलब है कि कैसे ओफिलिया को म्यूट किया गया है उस ड्रामा में। सो जब कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका कहीं समवेयर देयर विल बी सम सिंबॉलिक मीनिंग इन द कमिंग टाइम, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। गो टेक दाई सेल्फ टू ननरी, हैमलेट में बोलता है। पता चल गया आपने? गूगल कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सरप्लस गर्ल्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डाउरी वाज अ सिस्टम। और मैं आपको ये और बता दूं, माय स्टडी सेज दैट हमारे यहाँ पे डाउरी का जो बैड शेप है वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद ही आया। अंग्रेजों के आने के बाद दैट विक्टोरियन एटीट्यूड, दैट इज वेरी वेरी फ्यूटाइल, that is very very fatal, not futile, I'm sorry, fatal, for the women kind। आप देखिए बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, रिसर्च होने लगी है, एंड वी विल कम टू नो डे बाय डे कि विक्टोरियन एटीट्यूड ने हमारे यहाँ पे रहने वाली औरतों का क्या हाल किया, और इस्लाम ने भी किस तरह से इंडियन कल्चर के अंदर विमेन का जो बॉडी है उसका जो सार्टोरियल इफेक्ट्स है, सार्टोरियल का मतलब होता है कपड़े पहनने का इफेक्ट, ओके, और एस्थेटिसिज्म का है, यानी गहने। जैसे सीता जो है, माता सीता हनुमान को क्या देती है बताओ जब वो मांगता है कि आप कुछ निशानी दो? बताओ जिसको पता है कि सीता
हनुमान तो सीता जी को देता है अंगूठी, सीता जी क्या देती हैं बताइए? मैं वेट करूंगा बिल्कुल, आई वेट फॉर, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, के हनुमान ने सीता जी से तो टोकन, as a as a keepsake, not keepsake, token would be the right word, Hanuman ko, so that he can show this to Ram and Ram can believe that he has met Sita. नहीं, वो रिंग नहीं देती है, सीता जी देती है चूड़ामणि। चूड़ामणि होती है जूड़े के अंदर लगाने वाला एक बहुत खूबसूरत जूड़ा पिन, बन बन बोलते हैं जूड़े को। इसका मतलब है कि वहां पे पहना हुआ गहना दिखेगा। इसका मतलब है वेल वॉज नॉट टेकन बाय विमेन ऑन हेड। आज जो तुम्हें दिखता है ना, ये क्या गलत आंसर दिए जा रहे हो? रिंग 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 तो हनुमान जी ने दी थी सीता के मांगने पर, बिना मांगे उन्होंने रिंग ऊपर से फेंक दी थी अशोक के पेड़ से, भाई उनको ही पता चल जाए। मुद्रिका डार दीनी, वो एक लाइन आती है, हर्ष समेत पवन सुत लीना, ये लाइन आती है जब चूड़ामणि दी जाती है, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो क्या तुम लोग कैसे स्टूडेंट्स हो, बच्चों हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो चूड़ामणि का मतलब है कि जूड़े की जूड़े में लगाने वाला एक गहना देती हैं सीता माता। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा गहना है जो दिखता है। इसका मतलब है दैट वेलिंग एंड कवरिंग द हेड, थिंग्स केम लेटर विद द डिफरेंट इन्वेजन्स ऑन इंडिया। तो मैं अभी लिंक कर रहा हूं, आपका दिमाग भी तो ओपन करना है ना मुझे, सो दैट आप रिसर्च ओरिएंटेड बन जाएं, आप पढ़ने लगे, आपके आसपास जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सो यू बिकम प्रोफेसर बनने जा रहे हो। ऐसे थोड़ी प्रोफेसर बन जाओगे। आपकी क्लास में 15 मिनट का लेक्चर आपके स्टूडेंट को बांध के रखेगा। दे विल योर लेक्चर्स विल बाइंड स्टूडेंट्स के, आपको वो छोड़ के ना जाए। ये तभी होगा जब आप एक बार ढंग से लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट करें। चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं कि बात क्या कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि नन्स कैसे बनाई जाती थी। जब डॉवरी नहीं होती थी तो लड़कियों को नन बनने के लिए भेज दिया जाता था, और ये बहुत ही ज्यादा लड़कियां नहीं चाहती थी, उसके बावजूद भी उनको या उसके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता था कि वो खुद चाहे कि वो नन बन जाए। समझ रहे हो आप लोग? तो जैसे हरियाणा में जो बात से आप देखिए कि हरियाणा में जिस तरह से कुछ ऐसे संत हुए हैं सो कॉल्ड जहां पे दे रियली एक्सप्लॉइटेड विमेन। तो एक क्वेश्चन होता है कि आपके घर में, मेरे घर में से तो कोई लड़की नहीं जा रही है, देन हु दीज गर्ल्स आर, व्हाई दे हैव ऑप्टेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ मटेरियलिज्म टू गो एंड सर्व दीज काइंड ऑफ से सेल्फ प्रोक्लेम्ड साधुज एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीयर्स। इसका कारण है कि समवेयर गर्ल्स आर कंसिडर्ड सरप्लस। तो ये बात उस वक्त भी थी और उन लड़कियों को वहां भेजा जाता था। तो अभी मैं पढ़ रहा हूं कि देखो उनके क्या नियम थे, कैसे वो अपनी आगे मैं पढ़ रहा हूं, कैरी ये ऑन नो ट्रैफिक, अपने आप को ज्यादा सड़कों पर मत ले जाओ, बाहर मत जाओ। एंड एंकरेज शुड हैव नथिंग दैट ड्रॉविथ हर हार्ट आउटवर्ड, कुछ ऐसा मत करो जिससे आपका दिल की तरफ लगे। कैरी ये एंड सोल टू द चैपमैन ऑफ हेल, do not take charge of other men's property in your house, nor of their cattle, nor their clothes, neither receive under your care the church vestments, चर्च की चीज घर मत लाओ, जानवर घर मत लाओ। अब याद करो प्रायरस, जो चौसर ने प्रायरस पे सटायर किया है कि वो हाउंड्स रखती है। हाँ भरते जाओ, यस लिखते जाओ, जिन जिन को समझ में आ रहा है कि हाँ मैं क्यों लिंक कर रहा हूं, क्यों पता होना चाहिए। चौसर जब बच्चा होगा, उसके घर के आसपास जो औरतें रहती होंगी, उनकी घर की औरतें कैसी बातें करती होंगी, कौन सी बुक्स के रेफरेंसेस आते होंगे, तो आपको ना बाहर जाना है, ना बाहर की प्रॉपर्टी रखनी है। मतलब विमेन वर डिवॉइड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विच कैन थ्रू विच दे कैन प्रोक्लेम देयर आइडेंटिटी। ओके, तो जानवर नहीं रखना ताकि कोई एंटरटेनमेंट ना हो जाए। में अभी भी विधवा आश्रम है, एंड यू कैन गो एंड सी हेल विद योर ओन आईज। बताइए मुझे, यस बोलिए, कितने लोगों को पता है कि वृंदावन में अभी भी विधवा आश्रम है? एंड मैक्सिमम विडोज आर फ्रॉम ईदर ओडिशा और बंगाल। और बंगाल में सती प्रथा को पहले आपने बैन करने की कोशिश की, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमको मालूम है। मैंने सती पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर पढ़ा है, लिंग्विस्ट्स के बीच में मेरी रिसर्च है उसके ऊपर। और जो हमारी जो बहुत बड़ी राइटर है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, उनका जो ऐसे है, ये मैं आज आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो
सीरियस स्टूडेंट है रिसर्च करने वाले, या दोज हु रियली वांट टू क्रैक देयर जेआरएफ, उनको पढ़ना चाहिए कैन सुबाल्टर्न स्पीक। कैन सुबाल्टर्न स्पीक में केरल सेट में अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और कि उसमें आंसर देना मुश्किल हो जाए आम स्टूडेंट को, वो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज देयर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट विडोज। ओके, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, मैं फेमिनिस्ट अभी एग्जैक्टली नहीं बना, मेरी ट्रेनिंग फेमिनिस्ट की नहीं है, बट मेरी पीएचडी फेमिनिज्म में। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं साथ साथ में कि हमें एक विजन मिलना बहुत जरूरी है कि कैसे पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक पर आ रहा हूं। डू नॉट टेक चार्ज ऑफ अदर मैन्स प्रॉपर्टी, मैंने बता ही दिया। नॉर द चैलिस, चैलिस का मतलब होता है प्याला भी आपके पास नहीं होना चाहिए, अनलेस फोर्स कंपेल यू और ग्रेट फियर फॉर ऑफन टाइम मच रीजन दे आर नॉट टू पोजेस एनी बीस्ट। आपको कोई बीस्ट नहीं पालना है, जानवर नहीं पाल सकते, एक्सेप्ट ओनली अ कैट। कैट पाल सकते हो, ठीक है। यस यस, कुंदन कुमार कह रहे हैं कि पिछले साल, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है वो क्वेश्चन। एन एंकरेज दैट हैथ कैटल मस्ट थिंक ऑफ द हर्ड्समैन्स हायर और द काउज फॉडर। जो औरत जो भी नन जानवर पालेगी उसको चारे के समान समझा जाएगा, शी विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉडर। डिफेंड हर सेल्फ वेन हर कैटल इज शट अप इन द पेन फोल्ड। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, अगली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कह रहा हूं। देयर क्लोथिंग माइट बी ब्लैक और व्हाइट विदाउट कलर, कलर नहीं होने चाहिए। देयर गारमेंट प्लेन होने चाहिए, वार्म एंड वेल मेड। दे आर टू वियर नो आयरन, कोई आयरन नहीं पहनना है। नॉर हेयर क्लॉथ, हेयर क्लॉथ का मतलब होता है कोई भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन साथ में भी लिख रहे गर्म कपड़े पहनने हैं। इसका मतलब है बहुत सारे जैसे अगर आप जेन आयर पढ़ते हो, जेन आयर को जब हम पढ़ते हैं और बहुत सीरियसली, वाई कैट देखिए कैट जो है मेरे ख्याल से कैसे समझाऊं आपको, सोडोमी वर्ड सुना है आपने? सोडोमी, लिखिए एक वर्ड, SODOMY, सोडोमी। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सेक्सुअल न्यूएंसेस हैं, जो हल्का सा हिंट देता हूं, आप इंटेलिजेंट है सभी समझ जाएंगे। विद बिगर एनिमल्स अदर देन कैट एनिमल से विमेन इन हर लोनलीनेस कैन हैव सेक्स, सोडोमी कर सकती है वो। तो उसको किसी भी तरह से, कोई भी मेल जानवर से वो किसी तरह से भी लिंक ना हो पाए, सोडोमी बोलते हैं। आप देखिए उसको, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा और इंटेलिजेंट बनिए, तो आपको यू विल बी एबल टू, विद कैट सच थिंग्स आर इम्पॉसिबल। ओके, सो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताने की कोशिश की है। दे आर टू वियर नो आयरन नॉर हेयर क्लॉथ नॉर हेजहॉग स्किन्स, देयर बी थिक। हाँ, मैं बात कर रहा था जेन आयर की। जेन आयर रीड कीजिए ध्यान से, एक एक लाइन रीड करने पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि द वे जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती है वो किस तरह से रहते हैं, कितनी हार्डशिप से उनको रखा जाता है। तो समवेयर यू नो द रेफरेंसेस, आप द बुक यू नो एनक्रिन रिवले व्हिच आई एम रीडिंग एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट बुक टुडे, तो थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ फटाफट से। दे आर टू वियर नो आयरन हो गया, देयर शूज आर टू बी थिक एंड वार्म, हैव नीदर रिंग नॉर ब्रोच, उनके ना रिंग होनी चाहिए ना ब्रोच। लेकिन आपको याद है प्रायरस, जो हमारे चौसर की प्रायरस है, उसने एक ब्रोच पहन रखा है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बताओ, चलो बताओ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। लव कॉन्कर्स ऑल, ओमनी हैमर, ये टर्म लिखा हुआ है लैटिन के अंदर। सेंट लॉय का वो लॉकेट पहनती है। चौसर की प्रायरस कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर है। इसका मतलब है क्या राइटर ने दिखाया कि वो ये जो एंक्रिन रिवले में जो लिखा हुआ है, जो रूल्स है नन्स के लिए, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट वो कुत्ते पालती है। एम और विंसिट ओमनिया, याद है सब कुछ आपको पढ़ते रहना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आ रहा हूं। नॉर ऑर्नामेंटल गर्डल, गर्डल का मतलब है जैसे कमर पट्टा होता है ना, कमर में बांधने वाली, कनकती, करधनी कुछ बोलते हैं, वो नहीं पहनना है। नॉर ब्रोच नॉर ऑर्नामेंटल गर्डल, नॉर ग्लव्स, ग्लव्स नहीं पहनने हैं। लेकिन याद रहे हमारे जो चौसर की प्रायरस है वो ग्लव्स पहनती है। नॉर एनी सच थिंग दैट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू टू हैव। देयर टाइम इज टू बी ऑक्यूपाइड विद देयर डिवोशन एंड इन शेपिंग, स्यूइंग एंड मेंडिंग चर्च वेस्टमेंट्स, चर्च के कपड़े सिलो, चर्च का काम करो। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। इफ यू रीड ऑल दीज थिंग्स, जेन आयर का एग्जाम्पल दे दिया, प्रायरस का एग्जाम्पल दे दिया, एंड इफ यू रीड
any particular work, in Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age, तो आपको पता चल जाएगा. सीरियसली हमारी आदत ही पड़ गई है समरीज पढ़ने की, that we don't understand the things properly. इसीलिए हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इन डेप्थ स्टडीज नहीं करते. इन डेप्थ स्टडी कराता हूँ. एन एंकरेंस इज एंजॉयड नेवर टू बी आइडल. वो खाली नहीं रहनी चाहिए. इसीलिए जेन आयर में जाके देखिए, उन किसी भी नन को खाली that lieth, उसमें लिखा है कि iron that lieth still soon gathering rust. आयरन अगर पड़ा रहेगा तो उसको जंग लग जाएगा. तो आपको खाली नहीं रहना है. खाली रहोगे तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे. एंड वाटर दैट इज नॉट स्टर्ड soon stinketh. और पानी को नहीं हिलाओगे तो वो बदबू मारेगा. इसका मतलब है दे आर कंसिडर्ड, women are considered in nunnery, in convent, that they are like water and iron and they should be engaged properly. चलिए अब एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं आपसे, लगे हाथों. कितने बच्चों को करक्कू का पता है? करक्कू, मुझे बताइए करक्कू किसने लिखी है, या संगति इवेंट्स किसने लिखी है? आप 100% क्वेश्चन आएगा आपके नेट में. बताइए संगति इवेंट्स, SANGATHI, संगति इवेंट्स एंड करक्कू, ये दो किसके वर्क्स हैं? करो गूगल. यू गूगल पीपल. संगति इवेंट्स एंड करक्कू, बताइए कुछ मालूम है? ये बामा एक तमिल राइटर हुई है. स्वाति पूछ रही है कि वाई दिस टिपिकल रूल्स फॉर नन्स. तो ऐसा करो आप, ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, वो कौन सी फिल्म है पद्मिनी कोल्हापुरी की, जिसमें राज कपूर ने बनाई थी. उन्होंने विधवा का जीवन दिखाया है. तो वाटर एक फिल्म बनाई है, वाटर फिल्म देख लीजिए. मैंने जो रिसर्च की है विधवाओं के ऊपर, उसमें ऐसा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, देयर आर टू पर्टिकुलर. एक कहा गया है कि जो शादी होती है ना, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, जब एक शादी होती है तो अग्नि के फेरे होते हैं. तो अगर अब आप विधवा विवाह जब हम देखते हैं, इफ यू गो इन योर कल्चर, देखिए आपको अपने आंख कान ये सब ओपन रखने, तो आपको पता चलेगा. इन माय फैमिली देयर वाज अ विडो, नॉट विडो, आई एम सो सॉरी, नॉट विडो, अ गर्ल वाज लेफ्ट, and we were talking about her remarriage. When we were talking about remarriage, I talked about, like, they will be taking feras again. Then I was scolded, and I was married by that time. I'm talking about say 16 years back. तो मुझे डांटा गया कि एक बार फेरे हो गए, लड़के ने छोड़ दिया, या वो विधवा हो गई, या वट एवर हैपेंड, वो दूसरे. आई वॉज सरप्राइज, वाई नॉट. ये जो जितने भी गहनों के एक तनिष्क का ऐड है, जिसमें आपने देखा होगा कि लड़की फिर से उसकी रीमैरिज हो रही है, शायद उसका वो फेरे ले रही है, और उसका जो पहले वाले पति से बच्चा है वो उसके साथ उसमें बैठना चाहता है. तो जो नया हस्बैंड है वो उसको मना नहीं करता, उसको गोद में लेके बैठ जाता है. और फिर वो दिखाते हैं कि गहनों का ऐड है, मतलब कि ये जो दुल्हन है ऐसी दुल्हन होनी चाहिए वगैरह वगैरह. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब हम जब देखते हैं, लेकिन आप कल्चर में जाओगे ना तो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि लड़की एक ही बार फेरे लेती है, अग्नि को एक ही बार साक्षी मानती है. इसका मतलब है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती. अब कर देते हैं. पंजाब में आप देखिए, एक चादर मैली सी, इसके ऊपर एक राजस्थान सेट में क्वेश्चन आया था, दैट हु ट्रांसलेटेड द वर्क एक चादर मैली सी. बिशन सिंह बेदी ने इनके ऊपर फिल्म बनाई. लिखते जाइए, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं. तो खुशवंत सिंह इंग्लिश के बड़े राइटर हैं. तो एक चादर मैली सी, जिसपे फिल्म भी बनी है हेमा मालिनी और ऋषि कपूर की, तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें क्या दिखा रखा है कि शादी नहीं हो सकती. आप उसके ऊपर क्या करोगे? अगर एक लड़की का पति मर गया है तो वो अब क्या करेगी? उसको सोशली एडजस्ट करने के लिए उसको, चाहे देवर, बच्चे जितना ही देवर क्यों ना, उसको देवर के साथ उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाती है हल्दी लगा करके, और उसको कह देते कि नाउ दे आर मैरिड. चुन्नी चढ़ाना पंजाब में एक रिवाज है. तो हमारे राजस्थान में नाता प्रथा है. जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाकायदा, आरएस में आता है, नाता प्रथा क्या है, हाउ पीपल लुक डाउन अपॉन नाता प्रथा. तो बहुत सारी चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अभी देयर आर सर्टन, हमारे मनुस्मृति में जो रूल्स हैं बिल्कुल वैसे के वैसे वहां पे लिखे हुए थे. तो विडोज के बारे में ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि विडो जो मर गया हस्बैंड है, जो उसका हस्बैंड मर गया है, ऋग्वेद तक में ये सीन आता है
कि वो सती होने के लिए अपने चिता में अपने पति के साथ बैठ गई है, लेकिन देवर आकर के उसको रिचुअलिस्टिकली उठाता है कि अब तू उठ जा। ये मैंने खुद रिसर्च की इसलिए बता रहा हूं। और फिर उसके बाद उनको एक एक खास प्रथा होती है जिसके अंदर दे आर अलाउड टू हैव चिल्ड्रन, यू नो, देवर कैन हैव, द ब्रदर इन लॉ, यंगर ब्रदर इन लॉ कैन हैव चिल्ड्रन। उसमें महाभारत में भी इसका रेफरेंस आता है कि वेद व्यास आकर के कैसे मतलब बच्चे पैदा करते हैं, या कुंती के बच्चे कहां से हुए। सो ये रिसर्च है, और ये सब आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारे इंडिया में रिसर्च होने लग गई है दैट विमेन एक्चुअली डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स, बट दे वर गिवन राइट्स अंडर द नेम ऑफ डिविनिटी। ओके, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज दैट विल बी गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम द लेक्चर। अब आगे आते हैं। आज का अगला जो वर्क है दैट इज एंक्रीन रिवलिक के बाद में मैं एक पोएम पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं हर लेक्चर में कोई ना कोई पोएम हम पढ़ लें फटाफट से। एक वेबसाइट पे जाइए, देखिए, बताइए मुझे कौन सी पोएम अपलोड कर रखी है मैंने आज की वर्क में। गो टू माई वेबसाइट mukeshparik.com। वहां पे आज 17 जुलाई के नाम से आई हैव अपलोडेड समथिंग। गो देयर एंड टेल मी विच पोएम वी आर गोइंग टू रीड। मैंने वहां पे एक पोएम अपलोड की है। चलिए पोएम पढ़ना सिखाता हूं, कैसे पढ़ते हैं। बताइए मुझे कौन सी पोएम वहां पे अपलोड कर रखी है मैंने, बिकॉज इफ आई टेल द नेम यू विल एग्जैक्टली गूगल दैट then you won't be you will miss that part, you know, which I have, you know, uploaded there. Go to my website mukeshparik.com and search there my blog. On that, on 17th July, under the title 17th July, I have uploaded a poem. किसी को मिली तो मुझे जवाब दो, क्या नाम है पोएम का। No answer. I'm still waiting. बिल्कुल एंड में है वो पोएम, बिल्कुल एंड में है वो पोएम। यू कैन गो देयर। माई ब्लॉग इज ऑन माई वेबसाइट mukeshparik.com. द सन राइजिंग, प्रियंका अग्रवाल हैज आंसर्ड, दैट्स ग्रेट। सो गो टू माई वेबसाइट एंड कम टू दैट पोएम द सन राइजिंग। अच्छा बताइए, जो सन राइजिंग में आपको कहीं पन नजर आ रहा है क्या? लिखते जाइए जो बच्चे सीरियसली क्लास अटेंड कर रहे हैं। सन राइजिंग में आपको कोई पन दिख रहा है क्या? इज देयर एनी पन? सन राइजिंग, डू यू फाइंड एनी पन देयर? PUN, पन। पन क्या होता है? वेन एक वर्ड का के दो मीनिंग निकल रहे हो, या एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन इक्वलेंट होमोफोन से नजर आ रहे हो। होमोफोन का मतलब है जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर हो। तो सन राइजिंग में आपको कोई पन दिख रहा है क्या? वेन आई स्पीक सन, so don't you think like the spelling says SUNNE, sun, that is you know, that archaic spelling of sun, or the French influenced spelling of sun, that is that star. Okay, but sun का एक मतलब बेटा भी तो होता है, sun rising, you know, sun मतलब SON, that spelling sun rising. And sun in literature, when we simply or and alone use the word sun, it means Christ. So this poem has religious connotations as well. अब हम जॉन डन की एक पोएम पढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही जैसे पिछली से पिछली क्लास में मैंने आपको बेन जॉनसन की एक पोएम पढ़ा दी थी, क्योंकि मैं आपको पोएम्स नहीं पढ़ाऊंगा तो लिटरली विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोसोडिक क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल राइटर है। मेटाफिजिकल राइटर्स की खास बात क्या होती है बताइए? मेटाफिजिकल राइटर जो है वो बड़े प्लेफुल तरीके से लिखते हैं, स्टार्टलिंग इमेजेस देते हैं, कोलोक्वल स्टाइल में लिखते हैं, एब्रप्ट बिगनिंग करते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स होते हैं उनके अंदर नो इट्स नॉट सिनिक डकी, आई एम सो सॉरी कुंदन कुमार, इट्स टोटली रॉन्ग आंसर बेटा। सिनिक डकी नहीं है ये, इट इज पन। सन का मतलब यहां पे एक पन है। वो पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन। ओके, रिलीजियस कॉनोटेशन समझ में आया कि नहीं आया? इसी बहाने मैंने आपको मेटाफिजिकल पोइट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मेटाफिजिकल का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। मेटाफिजिकल जो एक वर्ड है, सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो डॉक्टर जॉनसन ने दी थी। ओके, वो मुझे अभी ये सब नहीं बताना बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग मेटाफिजिकल पोइट्री। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि टू हेट्रोजीनियस थिंग्स आर
योक्ड टुगेदर। दो अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोसिडी यूज करते हैं, मेटाफर्स, सिमिलीज, या हम सिनेक्डकीज, मेटोनमीज, इन सबको यूज करते हैं, तो एक रूल होता है, उस रूल को हम फॉलो करते हैं। रूल को कैसे फॉलो करते हैं कि जो आपस में मिलने वाली चीजें हैं, थिंग्स विच कैन बी एसोसिएटेड, और देयर क्वालिटीज विच कैन बी एसोसिएटेड आर एसोसिएटेड टुगेदर। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई किसी चीज को लिंक कर दे, इसका मतलब है कि वो जो राइटर है उसको डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल कहा, और ड्राइडन ने भी इसको यूज किया है मेटाफिजिकल। बट एक क्वेश्चन नेट में आया था, ध्यान से सुनिए, कि व्हेन डॉक्टर जॉनसन यूज द वर्ड मेटाफिजिकल फॉर जॉर्डन, और से ड्राइडन व्हेन यूज दिस वर्ड फॉर जॉर्डन, वर दे प्रेजिंग हिम और इट वाज इन एन एंग्री वे? सो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा नाराज होकर के दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, क्योंकि मेटाफिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। अब पिछली क्लास में बट वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऐसे हम कई सारी फिलोसफीज की बात करते हैं। तो मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी वेयर वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो जॉन डन दो राइट्स अबाउट वेरी ordinary things, about love, about other things, but because he was a well-read person, and उन्होंने अपना धर्म भी बदला था। he was a he proselytized, he was a turncoat। वो कैथोलिक थे, बट लेटर ऑन जब जेम्स फर्स्ट ने उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, तो देन ही बिकेम एंग्लिकन, मतलब वो प्रोटेस्टेंट बन गए थे। अब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग जॉन डन इन द रेगुलर क्लासेस, तब आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी सनराइजिंग में क्या है, एक एक लाइन भी पढ़ा सकता हूं और मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं। एक तो लिखो, इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है, एक्सटेंडेड मेटाफर। अब बताइए किस किस को एक्सटेंडेड मेटाफर पता है, या एक्चुअल में मेटाफर की थ्योरी किसने? दोनों क्वेश्चन नेट में आ रखे हैं। आई ए रिचर्ड्स ने मेटाफर के अंदर दो वर्ड यूज किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक टेनर होता है और एक जो होता है व्हीकल होता है। लिखिए लिखिए, आई ए रिचर्ड्स हैज गिवन अस द थ्योरी ऑफ मेटाफर, and I think in before 2 net exams I was just discussing this on board, and coincidentally that question came in the exam. I.A. Richard has given us the theory of metaphor, and metaphor has two meanings. एक tenor बोलते हैं, TENOR, and another term is called vehicle। तो ये हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज today's topic is कि मैं ये पोइम आपको समझा दूं। इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर है, इसमें जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए लिखिए जियोसेंट्रिक, GEOCENTRIC, जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक, HELL, हेलियोसेंट्रिक की है कि HELIOCENTR, हेलियोसेंट्रिक। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक लिखिए, हेलियोसेंट्रिक लिखिए, कॉपरनिकस की थ्योरी है। कॉपरनिकस का नाम सुना आपने? और जो जियोसेंट्रिक है वो टॉलमी की थ्योरी है, अलेक्जेंड्रिया में बहुत साल पहले, 2000 साल पहले। टॉलमी, PTOLEMY, टॉलमी, एंड कॉपरनिकस आपको पता ही है। अब द सनराइजिंग की स्टार्टिंग होती है, बिजी ओल्ड फूल। पढ़िए जोर जोर से पोएम को। बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, व्हाई डस्ट दाउ दस, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल राइम स्कीम, एंड पोएम स्टार्ट्स इन अ वेरी एब्रप्ट मैनर। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? बिना कोई भूमिका बांधे झटके से कोई कविता स्टार्ट कर देना। सो बिजी ओल्ड फूल, बिजी क्यों कहा है? क्योंकि अभी एक वर्ड आएगा सॉसी। तो ऐसे एक्चुअल में ये एक कार्पे डीम थ्योरी की पोएम भी हो सकती है। इसको हम लोग मॉर्निंग सॉन्ग मान सकते हैं, जिसको ओबेड बोलते हैं, AUBAD। ओबेड की 100% कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि इसमें अब वो हस्बैंड वाइफ है और एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें है उसने सूरज की किरणों को एड्रेस किया है। अच्छा, जब किसी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीज को हम लोग एड्रेस करते हैं तो दो और नई लिटरेरी टर्म्स हमारे सामने आती है। एक टर्म है प्रोजोपोया, प्रोजोपोपोया, PROSOPOPOEI। प्रोजोपोपोया का मतलब क्या होता है? व्हेन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर addressed as a concrete thing, abstract thing हो। और जब concrete चीज को एड्रेस करते हैं, जब एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटीज दे देते हैं, मतलब उसको की बात करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं personification। So suppose they give you a question like whether it is prosopopoia in this poem or personification. So actually this is
personification. मतलब सूरज, one who cannot talk, is given the human qualities that the writer is talking to him, and directly, suddenly he says, busy old fool. Why old? Because old का मतलब बहुत सालों से ये चक्कर लगा रहा है. Fool because you don't have the basic manners, कि किसी के बेडरूम में नहीं झांकते हैं. Unruly. Now यहाँ पे हुआ है, which is common feature of metaphysical poetry, ke the poet has made himself the center of everything. That the poet is the center. He decides what is rule and what is not rule. And if sun comes according to the rules of nature, the sun is unruly, and he is saying, a poet is saying, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? The rays which are entering the room, writer कह रहा है कि तू हमें क्यों जगा रहा है, बुला क्यों रहा है. मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन. बताइए कौन सी लिटरेरी टर्म है ये? मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन. विच लिटरेरी टर्म इज दिस? इट इज कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चन. रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? दैट सिंपली अ क्वेश्चन हुज आंसर इज ऑलरेडी नोन, और देयर इज नो नीड टू आंसर द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग. इसमें O2 वेस्ट विंड में शैली ने पूछा है, द लास्ट इफ ऑटम कम्स कैन, तो स्प्रिंग पीछे रह जाएगी क्या? बसंत नहीं आएगी क्या? आंसर है आएगी. इन द सेम वे, मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन. इसका मतलब है कि तू आ गया सूरज, सुबह हो गई, तो क्या हमारे सीजन्स तेरी वजह से चलेंगे? इसका मतलब नहीं चलेंगे. इसका मतलब है, देन अगेन द सेंट्रल फिगर इज द पोएट एंड इज बिलवड. So again, we can say that it is a beautiful love poem. Okay, let's saucy pedantic wretch. ये आपको लाइन एग्जाम में पूछ सकते हैं. saucy का मतलब बताइए, कितने बच्चों को पता है? कितने synonyms होते हैं? saucy means riz, body, racy, tintillating. There are so many meanings. Saucy means to say someone who's quite active, a kind of person जो दूसरों की बातों में बहुत ताक झांक करे. Okay, बिगड़ा हुआ सा. तो सूरज को गाली निकाल रहा है. पेडेंटिक मीन्स क्योंकि वो अपने किरणों का ताज पहन के आया है, सुंदर बन के आया है. तो पेडेंटिक मीन्स समवन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, शोज ऑफ हिज थिंग्स. एंड रेच का मतलब आपको बताइए, दुष्ट. दुष्ट वाई? बिकॉज सूरज उठाता है जब सुबह सुबह, तो बड़ी तकलीफ होती है. वन हु वेक्स अस अप, मोस्टली वी डोंट से दैट इज नॉट क्रूअल. गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज. चाइल्ड मतलब डांटना, जाकर के जो बच्चे लेट हो गए उनको डांट. बॉयज एंड शार्प प्रिटेंसेस. Sharp pretenses का मतलब, sar is the word used for fruit, vegetable, but the writer has used here for apprentices. Apprentices कौन होते हैं? जो नया नया काम सीखते हैं. मतलब स्कूल वाले बच्चों को और काम सीखने वालों को. Go tell court huntsman that the king will ride. Don't you think it's a satire on King James? It's a satire on King James because the writer, आज राजा शिकार करने जाएगा, उनको उठा जो उसकी सवारी तैयार करेंगे. इट मीन्स द राइटर हैज सैटिराइज्ड द रॉयल्टी फॉर देयर. मैंने आपको एक बार पहले बताया था दैट किंग जेम्स केम फ्रॉम स्कॉटलैंड, एंड स्कॉटलैंड इज अ पुअर कंट्री, एंड व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, सो ही स्टार्टेड वेस्टिंग द मनी, बिकेम अ स्क्वांडरर. ओके, तो वो शिकार विकार पर खूब जाता था. सैटिराइज्ड किंग जेम्स हियर. कॉल कंट्री एंट्स to harvest offices. Country मतलब village, ants का मतलब the writer has यहाँ पे हम कह सकते हैं कि it's a kind of meiosis, a very typical kind of meiosis, जिसमें औरतों को बहुत डिग्रेड कर, चींटियां जो अपने से कई गुना ज्यादा काम करती हैं, to harvest offices. So we can say that because John Donne उनकी लव मैरिज थी और एन डन उनकी वाइफ का नाम था, लेकिन उनकी जब डेथ हो गई थी 13th चाइल्ड पे, तो आपको मालूम है कि जॉन डन टूट से गए थे और वो बहुत बड़े डीन बन गए. बहुत सारे उनके सरमन्स फेमस हैं. डेथ्स ड्यूअल उनका बहुत इंपॉर्टेंट सरमन पढ़ाया जाता है. एंड ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ हैबिट, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉइसिज्म की तरफ चले गए थे और मतलब मर जाना भी चाहते थे. आत्महत्या पे भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है. बेनेट, मुझे एग्जैक्टली वो थैनेटस के एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने. तो बात चल रही है यहाँ पे कि वो औरतों के प्रति सेंसिटिव थे. सम वे
women, but somewhere he was anti-feminist, misogynist also. तो वो दोनों ही एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे इनकी पोएम्स में. और एम्बिग्यूटी इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेरल्ड ब्लूम ने और भी बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल राइटर्स को स्टडी किया है और कहते हैं कि मेटाफिजिकल राइटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया आफ्टर जॉन डन. लेकिन 20th सेंचुरी में आने के बाद जो खास तौर पे हमारे टी.एस. एलियट हैं, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स पे एक ऐसे लिखा था एंड कहते हैं कि उनकी खुद की जो पोएम्स है टी.एस. एलियट की, वो सारी की सारी पोएम्स जो है वो मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी गई हैं. तो मेटाफिजिकल स्टाइल का मतलब ही होता है जिसमें जैसे वो पोएम है ना, अगर आपको याद हो, लव सॉन्ग ऑफ जियोल्फर ट्रू फ्रॉक. In that poem, when he explains that sham is evening, when he describes, he says that evening is like a patient etherized on the operating theater or operation theater, और टेबल पे जैसे एक बेहोश मरीज पड़ा हो. सो कहाँ शाम का माहौल और कहाँ एक बेहोश मरीज. इसका मतलब है टू हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड टुगेदर विद फोर्स. तो ये जो इसको मेटाफिजिकल बोलते हैं. तो राइटर अपनी बात कह रहा है, कहते कहते कुछ भी इमेजेस ला रहा है बीच बीच में. कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिस. हार्वेस्ट का मतलब निपटाना, ऑफिस का मतलब काम, कि जल्दी तो गांव की औरतों को बोल उठने के लिए जो इतना काम करती हैं. सो दिस लाइन इज वेरी प्रूव्स हिमसेल्फ दैट ही वाज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. शायद लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम. प्यार एक जैसा होता है, वो सीजन नहीं जानता है, क्लाइमेट नहीं जानता है. नॉर आवर्स, डेज, मंथ्स, विच आर द रैक्स ऑफ टाइम. Those who have just joined us, let me tell them that we are reading a poem of John Donne. वो मेरे ब्लॉग पे चले जाइए, mukeshparikh.com, मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पे आज का जो भी पढ़ाया गया है वो मटेरियल अपलोडेड कर दिया गया है और उसी पे लास्ट में ये पोएम है. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पोएम with all its paraphernalia and all. Nor hours, days, months, which are the rags of time. Time is personified here again. अच्छा, टाइम एक, अब बताइए personification है कि प्रोसोपोया है, क्योंकि प्रोसोपोया है, क्योंकि टाइम इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. तो कई बार आपको ये मालूम होना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट पर्सोनिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज नॉट प्रोसोपोया. रैग्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कपड़े. टाइम अलग अलग कपड़े पहन करके आ जाता है. So this is the first stanza, and you can see that there is not a particular rhyme scheme, and the writer is not using, though he has divided his ideas into paragraphs. So we can say that poem is beautiful, but not structured one. Thy beams so reverend and strong, why shouldest thou think? अब writer has asked a question. सूरज को क्वेश्चन पूछा है कि तेरी किरणें इतनी रेवरेंड है, इतने आदरणीय है, एंड स्ट्रॉन्ग है, why shouldest thou think? कौन सा एलिमेंट यहाँ पे पैगन एलिमेंट और ग्रीक एलिमेंट आ गया है. पैगन भी कह सकते हैं क्योंकि राइटर समवेयर इज अ क्रिश्चियन, ओके, बट इज समवेयर टॉकिंग टू सन एज अ गॉड, सन एज अ पर्सन. सो नेचुरल चीजों को गॉड एंड गॉडेसेस के रूप में कौन देखते थे? ग्रीक लोग, और ग्रीक्स वर कॉल्ड पैगन्स. और वो हम हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं क्योंकि हम सूरज को भगवान मानते हैं. जो 5 जागृत देव हैं उनमें सूर्य देवता. Why shouldest thou think? ऐसा क्यों सोचता है? मतलब कि तू आ गया और हम उठ जाए, कोई जरूरी है क्या? I could eclipse and cloud them with a wink. Wink का मतलब आंख मारना होता है, लेकिन यहाँ if I close one eye, I can eclipse your cloud and cloud them. Cloud का मतलब यहाँ पे ढकना है. I can cloud your rays. अब ये एक humorous style हो गया कि the poem is comic in nature and humorous in style. So long. तो फिर वो कह रहा है कि क्योंकि मैं अपनी बीवी को देखे बिना नहीं रह सकता. एंड व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इन एलिजाबेथन एज द पोएम वाज रिटन एंड इट वाज नॉट अलाउड फॉर अनमैरिड कपल टू लिव टुगेदर एंड डिक्लेयर दिस वे देयर लव. सो दिस इज अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long. पर क्योंकि अगर मैंने आंख बंद की तुझे ढकने के लिए, तो फिर मैं अपनी बीवी को भी नहीं देख पाऊंगा और मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकता. So this is a love element. Have not blinded them. Again hyperbole. मेरी आंखों को नहीं ढक दिया, ब्लाइंड कर देगी. अगर मेरी वाइफ ने आंखें खोल दी, अगर वो जा, लुक एंड टुमारो लेट, अब तू जा और देख कल सुबह आना, वेदर, और मुझे बताना, बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइंड. और वो जो 2 इंडिया है, स्पाइस और माइंड के, स्पाइस के लिए इंडिया फेमस था और वेस्ट इंडीज था माइंड्स ऑफ गोल्ड के लिए. लेकिन यहां पे जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म.
और जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसके अंदर द राइटर इज चैलेंजिंग द स्ट्रिक्ट कैथोलिक डॉक्ट्रिन। स्ट्रिक्ट कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स वर अगेंस्ट साइंस। चलिए आपको एक बात बताता हूं कि इस पूरी पोएम में देयर इज अ ग्रेट एलिमेंट, यू नो, दैट्स व्हाई दिस पोएम इज फेमस। आपको मालूम है कि 1630 में इसकी डेथ हो गई, 31 में जॉन डन की, और उनकी जन्म से 30 साल हेयरसी के लिए ट्रायल किया गया था कैथोलिक वेटिकन सिटी के अंदर, कि भाई उन्होंने जो कहा है कि सूरज सेंटर में और धरती घूमती है। तो कैथोलिक जो एलिमेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि ही वाज अ कैथोलिक, जॉन डन वाज अ कैथोलिक एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ प्रोटेस्टेंट, ओके। लेकिन वो होल हार्टेडली प्रोटेस्टेंट बने, एंड नाउ इज क्रिटिसाइजिंग दी एलिमेंट्स। बहुत से एलिमेंट्स जो किसी धर्म में होते हैं, जैसे हम अपने ही धर्म हिंदुओं में ले लें, कई बार कुछ ऐसी चीजें जो हमें लॉजिकल नजर नहीं आती, ठीक है ना। जैसे मैं अभी गीता पढ़ रहा था, तो उसमें एक कुछ कहानी आ रही थी गीता के अध्याय से पहले, कि एक चिड़िया थी, वो एक आदमी की खोपड़ी के अंदर जो पानी था उसमें डूब के मर गई, और एक बाज था, वो बाज उसका पहले पति था, और वो बाज भी बाद में उस खोपड़ी में डूब के मर गया। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि खोपड़ी तो इतनी सी होती है, द स्कल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन यू नो एन ईगल और से अ वल्चर कैन यू नो ड्राउन हिमसेल्फ इन दैट। सो कई चीजें हमें समझ में नहीं आती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले का इंसान बहुत बड़ा था कि उसकी खोपड़ी इतनी, द स्कल वाज दैट मच ऑफ साइज, वी कैन नॉट से। इसका मतलब है दे आर ऑल एलिगरीज एक्चुअली, और से मॉरल फेबल्स, यू नो, वेयर द थिंग्स आर टॉट टू यू, यू नो, टू गिव मोरालिटी एंड टू टीच यू द मॉरल लेसन्स। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है, एक कॉलोनियल थीम है यहाँ पे। इसका मतलब है, एज यू ऑल नो दैट व्हेन जैकोबियन लिटरेचर स्टार्टेड, इवन इन द टाइम ऑफ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, colonialism had already begun. तो here writer is criticizing कि तू ऐसा कर, दुनिया भर में जा और दोनों इंडीज को देख कर क्या, इंडिया ऑफ स्पाइस, बी देम, तू छोड़ के आया था, और लाई हियर विद मी। नाउ अगेन यहाँ पे आ गया एंटी फेमिनिस्टिक मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट, कि उसकी बीवी, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बिलवड है, she is not speaking, she is lying like a dead body, and the writer is using that body as a land. समझ में आ रहा है आपको? It's a feministic interpretation of this poem now. Structuralistic interpretation. Structuralistic interpretation जब हम करते हैं, post structuralist deconstructive elements जब हम डिस्कस करते हैं, तो आजकल वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। सो देयर दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि here the body of the girl or the woman is used as a country. पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी आ गया, क्योंकि कंट्री को मैप के थ्रू नाप लेना मतलब कि आपका अधिकार शो करने की कोशिश करना, जो अंग्रेजों ने किया। तो जो कामराज कॉलेज में मेरा एक अभी लेक्चर हुआ था, जिन जिन बच्चों ने उसको सुना था, उसमें आई टॉक्ड अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म, उसमें आई जस्ट टच्ड अबाउट दिस ऑल्सो। एंड be where thou leftest them or lie here with me, ask for those kings whom thou sawest yesterday. और वो सूरज को कह रहा है, is asking the sun that you go to the world because you keep moving. अब आप अंदाजा लगाइए कि sun is moving because he's saying that, you know, go there, come here. It means he is considering not the element of Galileo or Copernicus who said that the world is heliocentric. He is considering a geocentric Copernican worldview. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर पोएम की बहुत डीप नहीं है, इफ यू जस्ट रीड अ पोएम फॉर द सेक ऑफ इट्स हिंदी, देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेट। ज्वाइन आवर क्लासेस एंड गेट एनलाइटेंड, और आप देखेंगे कि हम आपको मैक्सिमम लिटरेचर किस तरह से क्लासेस में, ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर ऑल्सो, आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday। समझ में आ रहा है ना? एंड दाउ शेल्ट मतलब शेल, और तुझे क्या सुनाई देगा? इसका मतलब है ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द किंग्स आर नॉट देयर, दे आर हियर। शी इज ऑल स्टेट्स, और वो साफ साफ वो बात कह रहा है कि माई वाइफ इज ऑल स्टेट्स। इट मीन्स वाइफ इज कंसिडर्ड हियर एज अ पीस ऑफ लैंड, एंड ऑल प्रिंसेस आई, एंड ही इज द अथॉरिटी। सो ही समवेयर क्रिटिसाइजिंग कॉलोनियलिज्म ऑल्सो, कि कैसे इंग्लैंड के, आपको पता है जेम्स फर्स्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मेरे ख्याल से 1600 और 1599 के आसपास स्कॉटलैंड से आ गए थे अजमेर में, मेरे ख्याल 1601 में शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट, बिकॉज माई हिस्ट्री इज नॉट दैट मच ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म
तो यहाँ पे बात चल रही है कि मैं उन सबका प्रिंसेस हूँ, और ये जो मेरी ये अल्यूजन है, मतलब यहाँ पर नथिंग एल्स इज प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस। फिर वो वहाँ पे ड्रामा और थिएटर का रेफरेंस आ गया, थिएट्रिकलिटी आ गई कि वाई इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे हुआ ये? बिकॉज आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, आपने नोटिस किया होगा कि एक जना बोल रहा है, लेकिन दूसरे की जो बातचीत है वो भी हमें समझ में आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सूरज जो बोल रहा है वो राइटर अपनी मर्जी से बोल के हमें समझा रहा है। वो कह रहा है कि आई कुड एक्लिप्स, कहा गया, या शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, नथिंग एल्स इज प्रिंसेस डू बट प्ले एज कंपेयर टू। प्ले का मतलब है ड्रामा, तो इसका मतलब है सूरज कह रहा है कि सूरज ने कहा होगा व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सन, कह रहे वो राजा तो वहां पे है, मैंने देखे हैं, तो व्हाट ही इज सेइंग, नो नो नो, वो तो नाटक कर रहे हैं, इट्स जस्ट दे आर प्लेइंग अवर रोल देयर, रियल, वी आर द रियल वन एंड दे आर the copied one, the theatrical people. Princes do but play as compared to this, all honor is a mimic, all honor is a mimic, क्योंकि थिएटर में जो हिस्ट्री प्लेस दिखाए जाते थे राजा रानी के, वो केवल एक नाटक होता था। मिमिक मतलब नकल। ऑल वेल्थ एल्केमी, एल्केमी आपको पता ही है, एल्केमिस्ट बेन जॉनसन का एक प्ले है, तो उसमें एक झूठे तरीके से जो अपन सोना बनाते हैं उसको एल्केमी बोलते हैं, मतलब नॉट द रियल वेल्थ, आर्टिफिशियल, इट्स नकली, सब्सटीट्यूट। Thou son art half as happy. पिछली क्लास में I told you the meaning of art in most of the Elizabethan, Jacobean and Caroline literature. इसका मतलब है art। कहता है सूरज तू बहुत कम खुश है हमसे, आधा ही खुश है। In that the world is contracted thus. अब देख तेरे लिए मैंने सूरज को, संसार को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। Thine age asks ease, और तेरी उम्र हो गई है और तेरे से आराम मांगती है। And since thy duties be, since का मतलब यहाँ पे because है, क्योंकि तेरी ड्यूटीज है कि संसार को वार्म करे। That is done in warming us. तो तेरे को सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तूने हमें करा। Now warm has another pun over here. Here warm is somewhere to deal with the here the connotations of the word warm mean to say sexually active again in the okay. तूने हमें गर्म कर दिया है, तूने हमें वार्म कर दिया, अब तू जा यहाँ से, तेरी ड्यूटी खत्म हो गई। Fine here to us, okay. अब फिर again there is a paradox. अब metaphysical poetry is also known for paradox, okay. What he says there, shine here to us, हमारे पर यहाँ पे चमक, and thou art everywhere, again a hyperbole. This bed thy center is, this bed is thy center, and these walls thy sphere, और चार दीवार इस कमरे की तेरे हो गए। तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स आपको बताए हैं, द राइटर हैज यूज्ड हियर विच थ्योरी, बताइए, लिख के बताइए कौन सी थ्योरी यूज की है? कॉपरनिकन थ्योरी। कॉपरनिकन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड जियोसेंट्रिक वर्ल्ड। जियोसेंट्रिक मीन जियो मतलब धरती, अर्थ सेंटर में है, एंड सूरज चक्कर लगा रहा है। एंड टुडे व्हाट वी बिलीव दैट द इसी को हम लोग मानते हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में, धरती सब सारी चीजों का सेंटर है, सॉरी, इसको बोलते हैं धरती सारी चीजों का सेंटर है। और हेलियोसेंट्रिक किसको बोलते हैं? सन इज द सेंटर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, और बाकी चीजें उसके चारों तरफ घूमती है। सो इसके अंदर जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को राइटर ने मानने की कोशिश की है कि भाई सूरज जो है, मतलब उसने एम्बिग्युइटी का भी इस्तेमाल किया है। इस चीज को भी मैं समझा दूं कि जियोसेंट्रिक को भी मान रहा है कि भाई धरती सेंटर है और सूरज चक्कर लगाएगा, बट समवेयर इज ऑल्सो मेकिंग फन ऑफ द कैथोलिक चर्च, क्योंकि उसको मालूम है उसके जमाने तक गैलीलियो की थ्योरी, क्योंकि गैलीलियो को सजा दी गई थी, ही वाज पनिश्ड बाय द चर्च 30 years बिफोर जिस जॉन डन वाज बॉर्न। इससे पता चलता है कि साइंटिफिक आइडियाज वर इन द एयर, ओके। और राइटर ने इस पर्टिकुलर पोएम में उन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये पोएम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको राइटर बहुत कुछ पूछ सकता है। एक्सटेंडेड मेटाफर समझ में आया आपको? एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? एक तो मेटाफर होता है कि समवेयर इन अ पर्टिकुलर लाइन द राइटर कंपेयर्स वन थिंग विद अदर, बट एक है कि द राइटर इन द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट टॉकिंग टू सन, एंड देन to the sun at the end of the poem in the long, in this poem of say 30 lines. इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये पोएम पब्लिश हुई थी आफ्टर डेथ ऑफ जॉन डन और 1633 में। इस पोएम की आप थोड़ा डिटेल और पढ़ लीजिए, मेरा कहना मानिए, so that you can be ready। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, and then they can ask you another question. That's it for today. Tomorrow
मेकिंग यू सॉल्व, मैं चाह रहा था कि लिटरेचर की हिस्ट्री के साथ साथ में या तो कुछ पेपर के 2-3 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर दूं, कोई पोएम पढ़ा दूं आपको। और दोज बहुत सारे लोग मनी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाने आता हूँ। लेकिन मैं आपको पता है ज़्यादा दिनों तक इस तरह से फ्री लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। बट फिर भी दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू गेट एडमिशन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस कैन टॉक टू मी. Number is 98402032. Thank you very much.